السلام علیکم. عید مبارک ہو. عید کے بعد پہلی دفعہ مل رہے ہیں تو یہ عید کے بارے میں چھوٹی سی غزل سمجھ لیں, نظم سمجھ لیں. تو شیخ صاحب نے سنی ہوئی ہے لیکن میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. رمضان کی برکت ہے یہ عید کا تحفہ, رمضان کی برکت ہے یہ عید کا تحفہ, اللہ کی رحمت ہے یہ عید کا تحفہ. بہت اچھا ردیف. رمضان کی برکت ہے یہ عید کا تحفہ, اللہ کی رحمت ہے یہ عید کا تحفہ. ہم شکر بجا لائیں وہ جتنا بھی کم ہے, ہم شکر بجا لائیں وہ جتنا بھی کم ہے, بس اس کی ہی نعمت ہے یہ عید کا تحفہ, بس اس کی ہی نعمت ہے یہ عید کا تحفہ. ہیں ہم میں کہاں گن مل پائے یہ انعام, ہیں ہم میں کہاں گن مل پائے یہ انعام, بس اس کی سخاوت ہے یہ عید کا تحفہ, بس اس کی سخاوت ہے یہ عید کا تحفہ. احباب کا ملنا بھی بس اس کے کرم سے ہے, احباب کا ملنا بھی بس اس کے کرم سے ہے, اپنوں کی سعادت ہے یہ عید کا تحفہ, اپنوں کی سعادت ہے یہ عید کا تحفہ. آخری شعر ہے, رمضان کی برکت سے مل جائے گی بخشش بھی, رمضان کی برکت سے مل جائے گی بخشش بھی, رب کی ہی عنایت ہے یہ عید کا تحفہ, رب کی ہی عنایت ہے یہ عید کا تحفہ, رمضان کی برکت ہے یہ عید کا تحفہ. ایک غزل کے کچھ شعر سن لیجیے. لطف تیرا اگر بہم ہوگا, لطف تیرا اگر بہم ہوگا, سارے عالم کا بھی کرم ہوگا, لطف تیرا اگر بہم ہوگا, سارے عالم کا بھی کرم ہوگا. ظلم ظالم تو رک ہی جائے گا, ظلم ظالم تو رک ہی جائے گا, ہاتھ میں تیرے جب قلم ہوگا, ہاتھ میں تیرے جب قلم ہوگا. عدل کو گر کرو گے بے وقت, عدل کو گر کرو گے بے وقت, اس سے بڑھ کر نہ کچھ ستم ہوگا, اس سے بڑھ کر نہ کچھ ستم ہوگا. آگے بڑھنے کو کون روکے گا, آگے بڑھنے کو کون روکے گا, ہاتھ میں جب یہی علم ہوگا, ہاتھ میں جب یہی علم ہوگا. زندگی پھر سے جلوہ گر ہوگی, زندگی پھر سے جلوہ گر ہوگی, باب انصاف جب رقم ہوگا, باب انصاف جب رقم ہوگا. لطف تیرا اگر بہم ہوگا, سارے عالم کا بھی کرم ہوگا. بہت اچھا, بہت اچھا, بہترین. چلیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دعوتوں کے سلسلے کی ابتدا ہے عید سے. جی ہاں, بہت دعوتیں کھائی ہیں عید سے. دعوتوں کے سلسلے کی ابتدا ہے عید سے, ہر ڈنر میں غیبتوں کا بھی مزہ ہے عید سے, ہر ڈنر میں غیبتوں کا بھی مزہ ہے عید سے. پھر مشقت سے پریشاں ہاضمہ ہے عید سے, پھر مشقت سے پریشاں ہاضمہ ہے عید سے, پھر وہی شیطان کا چورن بک رہا ہے عید سے. جوش رمضان کی وجہ سے متقی جو ہو گیا, جوش رمضان کی وجہ سے متقی جو ہو گیا, ہم کو اس کی پارسائی پر شبہ ہے عید سے. جوش رمضان کی وجہ سے متقی جو ہو گیا, ہم کو اس کی پارسائی پر شبہ ہے عید سے. جس کو روزے میں جھجک تھی شرم کا پیکر تھا جو, بے تکلف ہو گیا وہ بے حیا ہے عید سے. جس کو روزے میں جھجک تھی شرم کا پیکر تھا جو, بے تکلف ہو گیا وہ بے حیا ہے عید سے. لوگ روزوں تک میں مسجد جا رہے تھے روز روز, لوگ روزوں تک میں مسجد جا رہے تھے روز روز,
जो नमाजी मौसमी था लापता है ईद से जो नमाजी मौसमी था लापता है ईद से दिल हमारा बस इबादत में लगा था एक माह दिल हमारा बस इबादत में लगा था एक माह दिल लगी में अब हमारा दिल लगा है ईद से फिर वो दिल लगी में दिल लगी में अब हमारा दिल लगा है ईद से दिल हमारा बस इबादत में लगा था एक माह दिल लगी में अब हमारा दिल लगा है ईद से राह तकते मैं कशों को अब इशारा मिल गया राह तकते मैं कशों को अब इशारा मिल गया जो ट्रैफिक जाम था वो अब खुला है ईद से जो ट्रैफिक जाम था वो अब खुला है ईद से इस हिलाले ईद पर हुज्जत नहीं कोई मगर इस बात सबने एक ईद किया इस हिलाले ईद पर हुज्जत नहीं कोई मगर हर तरफ सूरज गहन का तस्करा है ईद से हर तरफ सूरज गहन का तस्करा है ईद से कब बलाए शायरी भी कैद थी रमजान में अच्छा आपकी बलाए कब बलाए शायरी भी कैद थी रमजान में वलवला शायर का लेकिन इब्तिला है ईद से और आखिर में संजीदा शेर है ए खुदा उस मुस्तरिब से ले मगर हल्का हिसाब ए खुदा उस मुस्तरिब से ले मगर हल्का हिसाब आमदे रमजान के दिन जो गिन रहा है ईद से आमदे रमजान के दिन जो गिन रहा है ईद से तो ये था अगर टाइम तो हमें भी एक और सुना देता हूँ मैं इसमें जो आप लोगों ने आपको रोक कौन सकता है ये बात भी सही है 5 मिनट है ये बात भी सही है नहीं ये मैंने कुछ लोगों ने आपने देख लिया होगा कि इसमें जब सोलर एक्लिप्स जो था मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था और उस पे जो है ना मैंने एक कथा लिखा था वो आपको सुना देता हूँ मैं खुर्शीद का ही नूर लिए महताब ने खुर्शीद का ही नूर लिए महताब ने शब में हिलाल व बद्र के जलवे दिखाए हैं सूरज छुपा के चांद ने लेकिन गहन में आज दुनिया को दिन में कैसे ये तारे दिखाए वाह 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 दुनिया को दिन में कैसे ये तारे दिखाए फिर पढ़िए बहुत अच्छा मैंने वाकई देखा था तारा जी मैंने भी देखा वही तो देखे ना खुर्शीद का ही नूर लिए महताब ने शब में हिलाल व बद्र के जलवे दिखाए हैं सूरज छुपा के चांद ने लेकिन गहन में आज दुनिया को दिन में कैसे ये तारे वाह क्या दिन में तारे दिखाना एक कैसा इस्तेमाल किया है आपने दिन में तारे दिखाने की चलिए आइए अंकर भाई मैं मेरा नाम डॉक्टर हनीफ मारकाटिया है ये जरा लास्ट नेम थोड़ा सा खतरनाक है कभी कभी फोन पे बड़ा कंफ्यूजन होता है अगला बोलता क्या कहा असली नाम है जी हाँ मारकाटिया मारकाटिया नहीं तो आप सर्जन कटाई मार के क्या किया उसी पे आते हैं सही मार के क्या किया तो वो बहुत अच्छा फोन में अक्सर कंफ्यूजन होता है तो कहते हैं क्या कहा तो वो मार काटिया उनको समझ में नहीं आता तो मैं कहता हूँ मार दिया काट दिया तो उसको फिर ये हमेशा याद रहता है मार दिया काट दिया या मार्केट तो डॉक्टर के पीएचडी मारकाटिया नहीं मैं एमबीबीएस मार्केटिया हूँ एमबीबीएस हूँ तो मार दिया काट दिया सर्जन नहीं है तो वो नाम खतरनाक है आदमी बहुत शरीफ हूँ मैं और मेमन हूँ तो हम तो मक्खियाँ भी नहीं मारते मक्खी को भी नहीं मार सकते हाँ, डरते हैं, डरपोक लोग होते हैं मारते तो हैं मेमन मक्खियां लेकिन चूसने के बाद उसको भी नहीं छोड़ते हाँ ये बात जरूर है कि वो कंजूसी में मशहूर हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नई जनरेशन है ना तो वो कंजूस नहीं है बल्कि इस हद तक वो फजूल खर्चे के हमें अक्सर सुसाइड करने का दिल चाहता है हाँ, नहीं, माँ बाप बच्चों को कमाया देख के हाँ, तो बहरहाल वो कंजूसी पे एक छोटी सी एक लतीफा हो जाए इजाजत है हाँ जो भी हो। तो वो एक साहब मेमन साहब जब उठे तो बेगम को उठाया कि नाश्ता वाश्ता तो झंझोड़ रहे उठ ही नहीं रही तो
फिर उनको समझ में आ गया, वो बाहर निकले तो बेटी किचन में नाश्ता बना रही थी, उसको गले लगाया और कान में कहा कि बेटी एक आदमी का नाश्ता कम बनाना, तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो बच्चा तो हो जाए। तो ये हम मेमनों की वो है। मैंने कुछ अरसे प्रैक्टिस की पाकिस्तान में और सऊदी अरब में। उसके बाद बल्कि सऊदी अरब जाने से पहले ही मैं बकाई यूनिवर्सिटी में फिजियोलॉजी मैंने पढ़ाना शुरू किया। कुछ 4-5 साल पढ़ाया, फिर प्रमोशन रुक गया सीनियर लेक्चरर के बाद, तो कहा कि आपको आगे पोजीशन करना पड़ेगा। तो वो एक कहानी है और उसमें फिर मुझे पोजीशन के लिए निकलना था, पैसे नहीं थे जेब में, तो मैं सऊदी अरब चला गया, वहाँ जमा करके फिर इधर आया और फिजियोलॉजी में पीएचडी का सोच के आया था, लेकिन वो सिर्फ मास्टर तक कर सका। कार्डियक रिहेबिलिटेशन एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में मैंने मास्टर किया शिकागो से। फिर वापस गया तो उन्होंने बकाया यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट दी और फिर प्रोफेसर ग्रेड में आया और फिर वो इमिग्रेशन हो गया और फिर बच्चों के उसमें लग गया, तो ट्रैक से हट गया मैं और सारा ध्यान बच्चों की तरफ। तो माशाल्लाह अब वो पढ़े लिखे और वेल ऑफ हैं। और Are you not practicing anymore? मैंने मास्टर के बाद यहीं पर एकोकार्डियोग्राफी की ट्रेनिंग ली थी, तो उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन अब उम्र के जिस हिस्से में हूँ तो अब मैं लोकम्स ही करता हूँ, कहीं आसपास शहरों में इधर कहीं पर भी 1.5-2 महीने की जॉब कर लेता हूँ। और बच्चों की भी थोड़ा सा प्रेशर है तो अब ज़्यादा काम ना करें। बेगम ख़ास तौर पे कि अब छोड़ें, अब 70 के करीब होने वाले हैं। तो मैं कि जवाब में अक्सर ये कहती थी, तो मैं एक बार मुँह से निकल गया कि 40 साल पुरानी बीवी को रोज़ाना तकते रहना, इससे बेहतर है थोड़ी देर के लिए निकल जाना बेहतर होता है। अच्छा मशवरा। तो उसके बाद उन्होंने कभी इंसिस्ट नहीं किया कि रिटायर हो जाएं। तो ये मेरी मुख्तसर से मेरा तारुफ है। वेलकम। तो फिर मैंने एक और दूसरा मास्टर, जब मैं वापस गया पाकिस्तान और प्रोफेसर ग्रेड मिल गई मुझे, तो हमें एक स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में हमें एक डिप्लोमा शुरू करना था। तो उसके लिए फिर हमें एक टीचर्स की ज़रूरत थी। तो फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी दोबारा गया, सेकंड मास्टर इन हेल्थ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। वो कराची यूनिवर्सिटी से किया जिसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। तो ये 2 मास्टर के अलावा डायबिटीज़ में डिप्लोमा किया बकाया यूनिवर्सिटी से, और एक डिप्लोमा ये है जो एकोकार्डियोग्राफी जो मैं करता हूँ। और अब ज़्यादा वक्त पाकिस्तान में गुजरता है, मुझे 2 हफ्ते हुए ये आया हूँ, 3 हफ्ते हुए, तो 2-3 महीने गुजार के फिर आ जाता हूँ। तो 6 महीने या इतना ही काम करता हूँ। और कराची जाते ही कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ जो 16 नंबर फेडरल में जाते ही वो ज्वाइन कर लेता हूँ एज ए वॉलंटियर। और उसके लिए और भी कहीं से फंडिंग ज़कात के मद में या डोनेशन के मद में लोगों से कहता रहता हूँ। और अब तक तो फैमिली, बच्चे और वाइफ और दूसरे क्लोज फैमिलीज देते हैं, तो वहाँ पर ये काम भी थोड़ा फलाई भी करता हूँ। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, चूँकि वो सिंध गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं देती, रोक रखे हैं, क्योंकि उन्होंने, वो सियासत की बात है आपस की इनकी, कि लोकल गवर्नमेंट ने वो अस्पताल बनाया, वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन अस्पताल है, लेकिन शदीद माली उसका है। लेकिन वहाँ के लोगों ने और कराची के डोनर्स ने अभी उसको आस्ते आस्ते उसको माली इमदाद कर रहे हैं, और मेरी तरह और लोग भी उसके लिए काम कर रहे हैं। तो वो अब चल पड़ा है और अच्छा है बहुत। तो मैंने शुरू में एक दरख्वास्त की थी कि मैं 1:30 बजे चले जाया करूँगा, क्योंकि अदबी महफिल है तो इससे बेअदबी ना समझा जाए। वो हमारे जो दूसरे, आप भी उनमें सबको जानते हैं, बारबेक्यू में हमारी वो एक ग्रुप है जो लंच ग्रुप है, तो उनसे बड़ी दोस्ती है, तो वो वहाँ में चले जाता हूँ। तो ये भी साथ साथ बता दूँ कि अगर मैं कभी उठ के चला जाऊँ 1:30 बजे तो इसको बेअदबी ना समझा जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. آج یہ اتفاق کی بات ہے کہ آج 21 اپریل اقبال ڈے بھی ہے. تو میں چونکہ اقبال سے بہت متاثر ہوں، شیدائی ہوں ان کا، تو میں نے آج اقبال ڈے کے اوپر ہی کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں، وہ آپ کو نظر کرتا ہوں. آج کی جو میرا مضمون ہے اس کا عنوان ہے اقبال کی حیثیت، کہ اس کو ہم کس حیثیت سے جانتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنی ان کی عقیدت ہے کہ وہ کتنے متاثر ہیں اس سے. تو میں نے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالی اس سے پہلے کہ میں علامہ اقبال کا تجزیہ پیش کروں. اس سے ایک چیز جو مجھے کافی عرصے سے پنچ کر رہی ہے، دکھ دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اقبال ڈے پاکستان میں ہمیشہ 21 اپریل کو منایا جاتا تھا. اب یہ پتہ نہیں کب سے شروع ہوا، 9 نومبر ان کی برتھ ڈے مناتے. برتھ ڈے تو زندہ لوگوں کی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور تو ہم یہ دیکھا بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم جو فوت ہو چکے ان کی برتھ ڈے مناتے ہیں، جو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسری چیز اس کا میں نے تجزیہ کیا کہ ہمیں برتھ ڈے نہیں منانی چاہیے. اس کی وجوہات میں نے بیان. جب اقبال ڈے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جب اقبال ڈے پاکستان منایا جاتا تھا تو سرکاری طور پہ تعطیل ہوتی تھی. ہر بچے کی زبان پر لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، میری زندگی شمع کی صورت تو خدا ہے میری. یعنی اس قدر اقبال پاپولر ہو چکا تھا، اور اس کا ہر سال جب اس کو رینیو کرتے تھے تو اس سے ایک زبردست ماحول پیدا ہوتا تھا. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا، میں اب تجزیہ کر رہا ہوں یہ برتھ ڈے منانی چاہیے یا نہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ برتھ ڈے اور اینیورسری، جو ہم ڈیتھ اینیورسری یا جو بھی ہم کہہ لیں اس کو، کیوں اس میں کیا فرق ہے. سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ برتھ ڈے میں صرف اپنے دوست و احباب کو مدعو کیا جاتا ہے، چاہے بری شہرت کے حامل ہوں. تعداد محدود ہوتی ہے، طعام کا اہتمام ہوتا ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، اور کیک اس کے نام کا کاٹا جاتا ہے جس کی برتھ ڈے ہو. اینیورسری میں دنیا کے مشہور مقررین کو دعوت دی جاتی ہے جو محدود نہیں ہوتی. عام پبلک کو شامل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. جس شخصیت کی اینیورسری منائی جاتی ہے وہ نہ صرف اپنے ملک میں شہرت رکھتا ہے بلکہ دنیا اس کی معترف ہوتی ہے. اس کی کاوشوں کو سراہتی ہے اور اس کی پذیرائی ہوتی ہے. پاکستان میں صرف 2 ہستیاں ہیں جن کے مدفن پر گارڈز مقرر ہیں جو 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں. ان میں ایک قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے علامہ اقبال. کیا کسی اور کو یہ اعزاز حاصل ہے؟ نہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جو احاطہ تحریر میں نہیں لائی گئیں. آخر میں اہل اختیار سے پرزور التماس ہے کہ اقبال کی برتھ ڈے بھی منائیں، لیکن 21 اپریل کو بین الاقوامی طور پر منایا جائے، عام تعطیل ہو اور گلی گلی ہر بچے کی زبان پر اقبال کا کلام. واہ، بر صغیر پاک و ہند آج کا دن ہمیں اس شخص کی یاد دلاتا ہے جس نے نہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں نام کمایا بلکہ پوری دنیا سے اپنی کاوشوں کی داد وصول کی. جس طرح دنیا کی مشہور ترین ہستیوں میں فلاسفر، سائنسدان، موجد، مذہبی رہنما وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اسی طرح ہر زبان کی ادبیات میں بھی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنے کارہائے نمایاں سے تاریخ رقم کی ہے. شاعری ایک ایسا صنف سخن ہے جو ہر آدمی کی زندگی میں شامل ہے. موسیقی اور شاعری لازم و ملزوم ہے.
جن کا جنم جنم کا ساتھ ہے۔ موسیقی کے بغیر شاعری تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن موسیقی کا وجود شاعری کے بنا شاید ممکن نہ ہو۔ سوائے چند سخت مذہبی لوگوں کے موسیقی ہر شخص پسند کرتا ہے۔ شاعری میں اقبال کا نام دنیا کی مشہور ہستیوں میں اس لیے لیا جاتا ہے، اس کی شاعری سے ہر زبان و مذہب کے لوگوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ اقبال ایک ایسا شاعر ہے جس نے علم فلسفہ کی مدد سے انسانوں کو، خاص کر مسلمانوں کو باعمل بنانے کی کوشش کی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال کے شعر کا تجزیہ کیا جائے تو حیران کن باتیں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس کی معلومات کا ذخیرہ کتنا ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے عمل کو زندگی کا لازمی حصہ قرار دیا اور مصرع ثانی میں وزندار توجیہ پیش کی ہے جو سب کو قبول ہے۔ عمل کی اہمیت سے اس سے زیادہ بہتر انداز میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہر عمل کا نتیجہ لازمی ہوتا ہے۔ جب بچہ رونے کا عمل کرتا ہے تو ماں فوراً بچے کو دودھ پلاتی ہے تو نتیجتاً بچہ چپ ہو جاتا ہے، یعنی عمل کا 100% نتیجہ حاصل ہو۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کچھ دعا پوری ہوتی ہے، کچھ پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کا نتیجہ 100% سے کم رہا۔ ایک بھوکا چیتا پوری کوشش کے باوجود ہرن کو نہیں پکڑ سکا، اس کا یہ عمل 100% بے نتیجہ رہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل کا نتیجہ کچھ بھی ہو، آدمی کو ہر دم باعمل رہنا چاہیے۔ مصرع اولا میں اقبال نے اچھے عمل کا نتیجہ جنت اور برے عمل کا نتیجہ جہنم سے تعبیر کیا۔ لگتا ہے یہ شعر صرف مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں، چونکہ اردو میں حیوان اور سور کو جنت ہی کہیں گے اور حل اور نر کو دوزخ ہی کہیں گے، اس لیے ہم نے یہ اقبال نے یہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ لے کے آئے۔ مصرع ثانی میں اقبال نے شاندار طریقے سے تخلیق انسانی کو اللہ کی تخلیق ثابت کیا، جبھی تو نوری اور ناری مخلوق کو سجدے کا حکم ہوا۔ ذرا غور کیجئے گا، نوری اور ناری وہ مقصد پورا نہیں کر سکی جو خالق چاہتا تھا۔ جب خاکی مخلوق پیدا کی گئی تو گویا کائنات میں انقلاب آ گیا۔ خاکی مخلوق نے اللہ کو اتنا مصروف کر دیا کہ مختلف اشیاء کی تخلیق کا لامتناہی سلسلہ چل نکلا۔ زمین، چاند، ستارے، سیارے، کہکشاں، سمندر، پہاڑ اور جانے کیا پیدائش کے عمل سے گزرے۔ نوری اور ناری مخلوق جو سوائے تسبیح کے اور کوئی کام نہیں کرتی تھی، مسلسل کام میں لگ گئی۔ فرشتوں کو قیامت کے بعد بھی جنت اور دوزخ کے انتظامی امور کی ذمہ داری سونپی گئی۔ خاکی مخلوق کے مقام کو نوری اور ناری مخلوق سے بلند دکھانا اقبال کا ہی کام ہے۔ نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہہ کر بتا دیا کہ انسان کے مقام تک کوئی اور مخلوق نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ موجودہ کائنات خاکی مخلوق کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ اس کی عظمت خاطر ہی تو دوسری مخلوق کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ کاش ہم انسان اپنی عظمت کو جانتے۔ یہ اس کے ساتھ میں نے کچھ اشعار نوٹ کیے ہیں جو میرا خیال میں آپ لوگوں کی نظر سے شاید گزرے یا نہیں، لیکن بہت ہی امید ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، لینن کا یہ بانگے درا سے میں نے لینن کے جو نظم اس میں سے لیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمائے حیوان ہے یہ ظلمات، یعنی ظلمات سے وہ تصویر دے رہے ہیں۔ یہ ایک اور دوسرا شعر ہے، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہیں، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔
एक और शेर है, दिल के लिए मौत तू कादिर है, ये लीनिन को कह रहा है, मुखादिम है। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। शेर है, कब डूब, अब ये आजकल के ज़माने के ऊपर है, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िरे रोज़े मकाफा। अब एक और शेर है, इसमें 2 अशार, परवाना और जुगनू। ये जुगनू और परवाने का आपस में मुकालमा है। शेर साहब टाइम का देखने बस मैं ये 2 शेर और है, ये मैं सुना दूं, क्योंकि इकबाल के लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। जोर से मेरा टाइम ले ले, आप मेरा टाइम ले नहीं, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं। इजाजत, यू आर अलाउड, गो अहेड। इजाजत है। बिल्कुल। परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, परवाने की मंजिल से बहुत दूर है जुगनू, क्यों आतिश सोच पे मगरूर है जुगनू। अल्लाह का, अब ये परवाना का, अल्लाह का 100 शुक्र के नहीं, ये अभी जुगनू ही कह रहा है, अल्लाह का 100 शुक्र के परवाना नहीं मैं, दरयूज़ा गरे आतिश बेगाना नहीं मैं। अच्छा, एक और शेर है गदाई के ऊपर, मांगने वाला गिरा है सदका मांगे या खिराज, मांगने वाला गदा है सदका मांगे या खिराज, कोई माने या ना माने मीरो सुल्तान सब गदा, कोई माने या ना माने मीरो सुल्तान सब गदा। ये भी आज के ऊपर हमारे जो IFM से लोन ले रहे हैं उसके ऊपर है। हम तो मेरे सब गधे कहेंगे। शुक्र शिकायत, ये ज़रब कलीम से मैंने ये कुछ एक शेर लिया है। लेकिन मुझे पैदा किया इस देश में तूने, लेकिन मुझे पैदा किया इस देश में तूने, जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे रजामंद। आदाब। और एक हिंदी मुसलमान के 2 अशार है, फिर मैं ख़त्म करता हूँ। हिंदी मुसलमान, गद्दार वतन इसको बताते हैं ब्रह्मन, गद्दार वतन इसको बताते हैं ब्रह्मन, अंग्रेज समझता है मुसलमान को गदागर, अंग्रेज समझता है मुसलमान को गदागर। ख्वार जहां में कभी हो नहीं सकती वो कौम, ख्वार जहां में कभी हो नहीं सकती वो कौम, बख्शिश इश्क जिसका हो जसूर, अब ये लफ्ज़ मुझे जसूर है, इश्क जिसका हो जसूर, फिक्र हो जिसका गयूर, ये गौर कीजिए। खारे जहाँ कभी हो नहीं सकती वो कौम, इश्क जिसका हो जसूर, फिक्र हो जिसका गयूर। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, वैसे कुछ नहीं जानते हैं। मेरा नाम बशीर अहमद, डॉक्टर बशीर अहमद। मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था और रिटायर्ड हूँ, रिटायर्ड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। शिकागो में अरसा गुजरा और अब 2 साल से यहाँ डैलस एरिया में। और ये आप लोगों की उर्दू महफिल बड़ी मेरे लिए ख़ास तौर से इल्मियत में इजाफा हुआ आप लोगों के ख्यालात से। शुक्रिया आप लोगों की शायरी का और सब चीज़ का। और ये डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया कि ऐसी महफिल अरेंज करते हैं। और हमारे रिजवान भाई इतनी मेहनत, शुक्रिया आपका। अशफाक भाई करते हैं, अशफाक भाई का भी। तो ये एक मजमून मैंने आज 2010 में लिखा था और वो पढ़ा हुआ था। तो ये धनक महफिल आप लोग बड़ी अच्छी करते हैं कि अपने दिल की हम जो लिखें वो सामने पेश कर दें। तो ये एक थोड़ा सा इसको कह लें ट्रैवलॉग है। मैं सफ़र करता हूँ
क्रूज शिप जो सेलिंग बोट होते हैं, उसका शौक इस तरह हुआ कि एक मरतबा मैं और मेरी बेगम बैठी हुई थी, हम क्रूज जो बड़े बड़े शिप होते हैं जिसमें 3000 लोग होते हैं, हम बैठे थे, तो खाना, रात का खाना, डिनर ले रहे थे, तो उसमें साथ में मुसाफिर साथी होते हैं जो 7 दिन एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्या मज़ा, तो कुछ नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा बड़ी सी कोई 5 स्टार होटल में बैठे खाना खा रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ चला जा रहा, पता तो चले कि समंदर में। तो सामने खातून थी, कहने लगी वो फला ऑर्गेनाइजेशन है और एक कंपनी वो चलाती है सेल बोट, सेल शिप्स होते हैं, उससे बड़ा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। वहाँ गए तो एक में गए तो वाकई बड़ा लुत्फ आया, पता लगा कि समंदर में है। तो एक और शिप पे गया था मैं, उस पे उसकी थोड़ी सी रवायदात मैं आपको पेश करता हूँ। तो इसका नाम था, वो शिप का नाम अराबेला। एक हफ्ता अराबेला के अरशे पर, तो थोड़ा सा समाज की 14 साल पहले लिखा था। आप सोच रहे होंगे कि अराबेला क्या शय है। अरे भाई, ये एक बादबानी कश्ती है और जहाज और कश्ती के दरमियान की शय है। हम उसे कश्ती और कंपनी वाले उसे जहाज कहते हैं। अब ये कितनी लंबी, कितनी वजनी, कितनी चौड़ी, ये जानकर क्या करेंगे, छोड़ें। बस इतना समझ लीजिए कि 40 मुसाफिर और 7 मल्लाहों की जगह है। अरशा यानी बहरी जहाज की छत, जिसे डॉक भी कहते हैं, उस पर बीच में खाने पीने की जगह, आगे के हिस्से में बादबान और पीछे बैठने की जगह, और एक छोटा सा व्हिरपूल जिसे मुसाफिर जब जहाज इस्तादा हो तो इस्तेमाल करते हैं। और नीचे की मंजिल पर कमरे हैं जहां मुसाफिर सोते हैं, जहां रहते नहीं सोते हैं। अरे मैंने कमरा लिख दिया, इसको काबुक कहना चाहिए। बस समझे 2 बंक बेड हैं और आगे अपनी जगह आप खड़े हो सकते हैं, बस। साथ में बाथरूम, और ये रूम इन्वर्टेड कामवाज में लिखा है, रूम, जिससे में वक्त ज़रूरत सिर्फ बैठ सकते हैं और नहाने के लिए सिर्फ खड़े हो सकते हैं। बहुत छोटा सा वॉश बेसिन, आहिस्ता उसके पीछे शेविंग और ब्रश वगैरह रखने की जगह। आप टब का पूछ रहे हैं? जी नहीं, सिर्फ शावर है। मुझे पहले दिन वहाँ समाने में मुश्किल हुई, फिर आदत हो गई, 7 दिन थे। और तस्वीर कीजिए कि छोटी सी जगह साकित नहीं है और हर वक्त, जी हाँ, हर वक्त हिलती रहती है। सेल बोट है वो, और मौजें और हवा तेज हो तो इसकी हलावट में तेजी आ जाती है। हलावट में तेजी आ जाती है। और जब आप जरूरतन खड़े हों तो एक हाथ हमेशा तैयार रखें कि कभी भी एक तेज लहर आपको उस हाथ से सहारा लेने की मजबूर कर सकती है। वहाँ मैंने नासिर लिखा था, मगर वो हकीम काज़मी का शेर, पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में कुदरत ने मजा रखा है, याद आ गया, पता नहीं क्यों, मगर बाद में एक शायद इस हलावट में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब भी लोग अपने घर बार छोड़कर सैकड़ों मील का सफर एक काबुक में सोने के लिए आते हैं। मैं 11 जनवरी को शिकागो से सुबह 6 बजे रवाना हुआ और सख्त सर्दी की जगह छोड़कर बराह मियामी 3:30 बजे अमेरिकन एयरलाइंस के तैयारे से सेंट मार्टिन पहुंचा। ये एक जजीरा कैरेबियन समंदर में है। दर्जा हरारत 80 था, तो आप समझ लीजिए अवाम और खवास एक ही सफ में थे, जो बहुत से सर्दी में से गर्मी में पहुंच गए थे। कम लिबासी के लिबास में थे। अकबर अलाहाबादी तो उनको देखकर बेपर्दा नहीं बेकपड़ा नजर आती कौम की बेटियां कहते, या ये शेर तो नहीं कह सकते थे, बल्कि उनसे कहना चाहिए था कि तन की उरियानी से बदतर नहीं है दुनिया में लिबास। ये वो जामा है कि जिसका नहीं उल्टा सीधा। तो ये मुझे दिल चाह के कह दूं उनसे। एयरपोर्ट से निकलकर हम शेयर टैक्सी लेकर हम उस साहिल की तरफ रवाना हुए जहां से कुछ दूर हमारी किश्ती लंगरअंदाज हुई थी। रास्ते में ये जजीरा सेंट मार्टिन देखा, साफ सुथरा, जिस पर कहीं फ्रांस की हुकूमत, एक ही जजीरे में फ्रांस की हुकूमत है, कहीं हॉलैंड की। 2 एयरपोर्ट्स हैं अलग अलग उनके, और टैक्सी इन दोनों मुल्कों के दरमियान बगैर रोक टोक के रवां दवा थी। जाहिर है ऐसी जगह देखकर अपना मुल्क याद आता है और ना चाहते हुए दिल कुछ उदास हो जाता है और जहन कुछ सोचने पर मजबूर होता है।
बस ये शेर इस हवाले से गालिब का एक शेर सुनिए। आरिज़ गुल देख रूए यार याद आया असद, जो शीशे फसले बहारे इश्तियाक अंगेज है। कुछ 20 मिनट के सफर के बाद हम साहिल पहुंच गए। वहां अरबेला के स्टाफ की एक खातून किम मिली, बहुत खुश हुई, खवातीन से हाथ मिलाया और हजरात से गले मिली, यानी किसी को गुल और किसी पे समर फेंकी। किसी में गुल हमने दिल में कहा गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी कुछ खाने बरअंदाज चमन, कुछ तो इधर भी, तो हमसे वो गले मिल रही हो। थोड़ी देर में एक छोटी सी किश्ती जिसे टेंडर कहते हैं, जिनमें 10 मुसाफिर बैठ सकते हैं, आई। हम लोग 6 थे। हमारे सामान लेकर कमरे की नंबर की पर्ची सामान पे लगा दी और हम लोग संभल के उस किश्ती में बैठ गए। छोटी सी 1 मील पर अरबेला खड़ा था। ये छोटी किश्ती जहाज के साथ लगती है और दोनों तलातुम चल रहा, दोनों तलातुम की वजह से हिलती रहती हैं। और जब दोनों यानी जहाज का छोटा प्लेटफॉर्म और कश्ती का किनारे एक सतह पर हो तो आप जल्दी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और दोनों हाथ साथ लगे हैंडल पर कायम रखते हैं और एहतियात से हम लोग अरबेला पर चढ़ गए। वहाँ एक खातून जिनका नाम होप था इस्तकबाल किया और रम और पंच पेश किया। मैंने कहा रम रहने दो, पंच दे दो। बड़ी हैरत के बाद उसने पंच दे दिया। मेरा ख्याल है उसने पहला मुसाफिर देखा होगा जो मुफ्त की शराब भी नहीं पीता। और हम ये नहीं कह सकते कि मुफ्त की पीते थे और कहते थे हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती ये गदी। फिर मैं अपने कमरे में गया। पहला इंप्रेशन, उफ इतना छोटा कमरा, बहुत छोटा था। दूसरा ख्याल आया कि शुक्र है मैंने अकेले रहने का फैसला किया था, नहीं तो 7 आदमी कोई और रहता। मगर कुछ वो के 50% टिकट के ज्यादा देने हुए थे। पहली रात उस काबुक में सोने में मुश्किल हुई। बस समझिए आप एक बड़े झूले में सो रहे हैं और उसको कोई आहिस्ता आहिस्ता हिला रहा है और लोरी समंदर की लहरें थी। मैं सोचने लगा कि शीर ख्वारी की उम्र में इसी तरह झूलने में सोता होऊंगा और शायद माँ झूला देती होंगी तो ऐसा ही लगता होगा। इसी तस्वर को लेकर मैं ख्वाब हो गया। दूसरे दिन एक जजीरा जिसका नाम एंगुला था जाना था। 9 बजे के करीब जहाज ने लंगर उठाया। पहले 10 मिनट में जहाज मोटर से चला गया ताकि समंदर के अंदर चले जाए, उसमें आसानी होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता बादबां खोले गए। बस लोग नज़ारा देखने लगे, मसरूर हो रहे थे। और मुझे परवीन शाकिर का ये शेर याद आया, बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। तो वहाँ मुझे ये शेर तो बहुत पहले पढ़ा था, इशारा समझ में नहीं आता था क्या कहती है परवीन शाकिर। इशारा वहाँ मुझे समझ में आ गया कि क्या इशारा है। और बस बादमां खुलने की देर थी। हम इशारा, किनारा, समंदर, हवा, मौज सब देख रहे थे और महसूस कर रहे थे। और ये परवीन शाकिर की इसी गज़ल का आखिरी मख्ता शेर वो भी बड़ा याद आया कि एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की जद में है। हवा तेज चल रही थी और मुझे ये याद है, एक मुश्ते खाक और वो भी हवा की जद में है, जिंदगी की बेबसी का इस्तियारा देखना। उस दिन हवा तेज थी, इसलिए सिर्फ 3 बादमां खोले गए और जहाज 15 मील की घंटे की रफ्तार से चलने लगा। और समंदर में तलातुम भी खूब था। जहाज कभी दाएं कभी बाएं चलने लगा। जहाज का अगला हिस्सा पानी में खूब शराबोर हो गया। सब लोग पीछे आकर बैठ गए और जम कर बैठ गए कि एक हाथ किसी मजबूत कायम चीज से थामे हुए। समंदर का पानी भी गाहे गाहे उड़कर अपने वजूद का यकीन दिला रहा था और हर 30-40 सेकंड में एक ऊंची मौज आपके हिचकोलों में इजाफा कर रही थी। और इन सब के साथ आवाज़ का संगम, समंदर की मौज, हवा की साएं, कश्ती और पानी की बाहम टकराव की आवाज़ें, बादबानों की सरसराहट एक अजीब मौसीकी पैदा करती है।
जो मुझे अभी याद आती है। बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेहतरीन। ये आप एराबेला वालों को भेज देते तो उनका ट्रैवल एडवर्टाइजमेंट होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीर है। ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं। यहाँ पर आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक नई शायरा है, मतलब एक शायरा की मुतालिक बात कर रहा हूँ। उनका नाम है हुमैरा रहमान। उनका एक शेर है, ज़रा सी बात पे नाराज़ होना, रंजिशें करना, जैसे कोई ज़िद्दी बच्चा कभी बहलाने से। आज मैं जिन खातून शायरा का जिक्र करने जा रहा हूँ उनका नाम हुमैरा रहमान है। कराची में आपकी विलादत हुई। वालिद साहब की मुलाजमत की वजह से सूफियों के शहर मुल्तान में ही मुंतकिल हो गए। 1971 में जब रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की नशरियात शुरू हुई तो उसकी इब्तिदाई 3 ख़वातीन अनाउंसर में से आप एक थी। आप ज़माना तालिब इल्म से शायरी पर तब आजमाई कर चुकी थी और जो अशार आपने शुरू में कहे थे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ रिसालों और मैगजीन में छप चुके हैं। ड्रामा, खबरें, कमर्शियल सर्विस, कॉलेज मैगजीन और गर्ल्स के हर शोबे से किसी न किसी हद तक मुंसलिक रही, लेकिन शौक़ का तो स्कूल के ज़माने से ही शुरू हो चुका था और इसी तजस्सुस की तलाश में रोज़ में बच्चों के सफ़र से लेकर अफसानों तक और फिर नज़मों और वज़नों की इशाअत तक मुख्तलिफ असनाफ में अपने ज़ोर बाजू को आजमाती हुई गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की जनरल सेक्रेटरी यूनियन के फ़राइज़ अंजाम देती रही और मुत्तहिद बैनुल कुलियाती तरह मुशायरों में अपने कॉलेज की नुमाइंदगी की। और उसके बाद आप कराची आ गई और कुछ अरसे रेडियो पाकिस्तान कराची से भी मुंसलिक रही। उसके बाद वालिदैन की अचानक अजानी मौत की वजह से आप अपने बड़े भाई के पास लीबिया चली गई और 1 साल का अरसा लीबिया में क़याम किया। उस दौरान सैयद नसीमुर रहमान से आपकी शादी हुई। फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास लंदन चली गई। लंदन के क़याम के दौरान BBC लंदन की नशरियात में हफ्तावार हिस्सा लेती रही। उसके बाद शादी की तारीख तय होने के बाद 1968 में पाकिस्तान में शादी के लिए आई और BBC लंदन की बंधन में बन गई और यूँ अमेरिका में अपने शौहर के साथ आ गई। इसी दौरान बहैसियत एक हाउस वाइफ के घर बार की और अमूर खानदानी की आपकी शायरी पर जब भी एक ताराना नज़र दौड़ाते हैं तो हमको हुमैरा रहमान साहिबा एक फिक्री शायरा के रूप में नज़र आती हैं। फिर हम आगे चल कर जब उनकी शायरी का जायज़ा लेते हैं तो देखते हैं कि हिजरत के लगातार तजुर्बों से इतनी चीनी में बेश कीमत मुशाहिदात के बाद हुमैरा रहमान साहिबा के वजूद में से उनके छुपे हुए तख्लीकी जौहर मज़ीद उजागर होकर उनके कलाम को मज़ीद जला बख्श देते हैं। आपके अंदर छुपी हुई एक मजबूत और तख्लीकी शख्सियत उभर कर वजूद में आती है। हुमैरा रहमान साहिबा के कलाम से साफ ज़ाहिर है कि आप एक तरक्की पसंद शायरा हैं। आपने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की गोल्डन जुबली की कॉन्फ्रेंस 1986 में लखनऊ में शामिल थी और आप 3 बार हिंदुस्तान में मुशायरा पाक हिंद और मुख्तलिफ नशिस्तों में शिरकत कर चुकी हैं। उसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, दुबई मुख्तलिफ जगहों पर बेशतर शहरों में अपने नादिर कलाम से सामीन को मुस्तफ़ीद कर चुकी हैं। आपके अशार और कहानियों की किताबों के मुताले के बाद हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपकी माशरे की इस्लाही पहलू पर बड़ी कड़ी नज़र और रोज़मर्रा के मामूलात और वाक़यात को उजागर करती हुई नज़र आती हैं। जब हम उनके मजमूए कलाम पर एक कायराना नज़र डालते हैं तो हमको रोशनी की बहुत ही हसीन और जमील किरणें आपके तख्लीक़ात, तख़य्युलात और ख़यालात की खुश रंगी को बहुत ही अच्छे अंदाज से हमारे रूह और जान को मुअत्तर करते हुए नज़र आती हैं। मज़ीद गहराई में जाए तो आपकी शायरी में बहुत तख़य्युलाती ख़यालात मौजूद है। आजकल मिडिल और हाई स्कूल के तलबा के लिए 3 हफ्ते के दौरान ये कि उर्दू बोलचाल के लिए एक कोर्स समर कोर्स में तदरीस के यूनिवर्सिटी ऑफ क्या नाम
उसमें फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। उमैरा साहिबा का पहला शेरी मजमूआ इंदमाल जो कि 1985 में शुमाली अमेरिका में शाये हुआ, मौजूदा शोरा में पहला उर्दू का मजमूआ कलाम होने का भी एजाज़ रखता है। आपकी पहली काविश इंदमाल 1985 में छपी, उसके बाद 86 में उसका दूसरा एडिशन छपा और तीसरा एडिशन 2011 में छपा। दूसरी किताब इंतिसाब 1997 में छपी और दूसरा एडिशन 2011 में छपा, और आपका तीसरा मजमूआ कलाम अभी छपाई के मरहले में है। आपने इंडिया के शायर ज़फ़र ज़ैदी मरहूम के शायरी के मजमूए शायरी ज़ख़म ज़ख़म उजाला फुल ज़फ़र ज़ैदी के इंतकाल के बाद बहुत ही खूबसूरती से तरतीब देकर 1985 में छपवा कर उनके कलाम को दवाम बख्शा और उर्दू अदब के मारूफ हलकों में तारीफ़ करा के खराज तहसीन हासिल किया। और शायद की नज़र में आप ज़फ़र ज़ैदी मेमोरियल कल्चर सोसाइटी की रूह रवां सदर और फाउंडर मेंबर हैं, और सालाना ज़फ़र ज़ैदी मेमोरियल मुशायरे को इनकाद करने में आपकी काविशों का बहुत बड़ा हाथ है। ये मुशायरा माशाअल्लाह से गुज़िश्ता 40 साल से मुसलसल न्यूयॉर्क में मुनक़िद हो रहा है, और इंतज़ाम में और अपनी मिसाल आप है। इसका मैं वो लिख कर आया हूँ, आप लोग अगर चाहें तो उनके उसको देख सकते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सब। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद बेग है। तो मेरी ये पहली शिरकत है इस महफिल में। तो डॉक्टर आमिर, रिजवान भाई और अशफाक बड़ी अच्छी तंजीम चला रहे हैं। इससे पहले मैं सादिक़ैन की एग्जीबिशन हुई थी लास्ट ईयर गालिबन, उसमें मैं आया था और एक मुशायरा हुआ था, तो बहुत इन्जॉय किया। हम रहते हैं लिटिल एल्म में, तो थोड़ा डिस्टेंस है यहाँ से, तो मैं अक्सर यूट्यूब पे आप लोगों की ये महफिलें देखता हूँ। तो आज हमने कहा चलो आज शिरकत कर लेते हैं। तो मैं कराची से हूँ, पैदाइश कराची में, वहीं इंटर के बाद फिर मैं अमेरिका आ गया था 1973 दिसंबर। तो मायामी आया था मैं, तो कॉलेज और वहीं किया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से इंजीनियरिंग की, और उसके बाद सिएटल मूव हो गया। बोइंग कंपनी के साथ काम किया मैंने, तो वहाँ ज़्यादा उम्र मेरी सिएटल में गुजरी बोइंग के साथ। तो वहाँ का वेदर आपको मालूम होगा, बारिश ज़्यादा होती है और क्लाउडी रहता है। तो सोचा कहीं अल्लाह से दुआ की कहीं ज़्यादा सूरज और रोशनी मिले। तो कहते हैं अल्लाह में फिर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो लास्ट समर जो है वो काफ़ी गर्म था यहाँ, मतलब अंदाजा नहीं था कि इतना भी गर्म होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोग को 1 साल हो गया है आए हुए, तो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ। अब आप बोइंग में काम नहीं करते? जी मैं रिटायर्ड हो गया बोइंग से। सभी उनके नट्स बोल्ट्स गिर रहे हैं। जब से मैंने बोइंग छोड़ा इज गोइंग डाउन हियर। आप क्या ढीले छोड़ गए थे? तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी महफिल है आप लोगों की, और बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं कुछ तैयारी नहीं करके आया, तो पहले तो नाम बताएं। रेहान कैसा नाम है, रेहान। और मैं जब से उर्दू घर में साथ ही साथ हूँ। और ये डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैंने सोचा क्या बोलना, तो डॉक्टर साहब ने अभी जहाज़ का जिक्र किया, पानी के जहाज़ का। तो मैं भी मर्चेंट नेवी में था, इंजीनियरिंग की थी मैंने, और वहाँ एक ख़ास टर्म होती थी रगड़ा लगना। तो जो जूनियर होते थे उनका बहुत बुरा टाइम गुजारा मैंने भी। अब तो खैर शिप चेंज हो गया, 7-7, 8-8 हज़ार पैसेंजर वाले आ गए। हम लोग कार्गो में होते थे, और शिप भी ऐसे थे, खासतौर पे पाकिस्तानी शिप के बारे में एक शेर था कि अल्लाह के सहारे चला जा रहा है ना। अब आप शेर भूल गए हमें, तो मुल्क भी अल्लाह सहारे, जी हाँ, जैसे चल रहा है। तो फिर मैं जब 30-32 साल पहले यहाँ आया, तो कुछ बच्चे छोटे थे, तो मुझे बस ये था बच्चे बिगड़ ना जाए, तो फिर मैंने छोड़ दी थी लाइन। अब्बा तो बिगड़े हुए थे, नहीं बच्चे ना बिगड़ जाए। तो मैं बच्चों, आप शिप पे आपको 6-6 महीने बाहर रहना पड़ता ना, तो अब्बा तो ऑलरेडी बिगड़े हुए थे, तो मसला नहीं था। तो उसमें ये कि 3 महीने 6 महीने आपको कार्गो शिप पे रहना होता था,
फिर मैंने यहाँ आके जब कैलिफोर्निया में तो ज्वाइन नहीं किया मैंने। अभी शेख साहब ने जिक्र किया इकबाल का, तो इकबाल की जो कह रहे थे कि सालगिरह उसका, तो पाकिस्तान में असल में हर चीज़ में हल्ला गुल्ला चाहिए। किसी की वफात में आप क्या करेंगे, चने जो वहाँ पे चने पढ़ना या इस तरह की चीज़ें, तो उसमें तो मज़ा नहीं है। तो इसमें गाने वाने चल रहे हैं, इसलिए ये सालगिरह मनाते हैं। जो मुझे इल्म हुआ है जो सालगिरह, जैसे वो उनका भी ख़त्म कर दिया शायद जिन्ना साहब का, क्या वो सिर्फ उनकी सालगिरह मनाई जाती है। तो इन्होंने इसलिए किया था कि कौमी नगमे और उसके साथ जो भी गाना डांस हो सके। मेरी जहाँ तक थोड़ा बहुत इल्म है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे ये पता है कि जितनी तारीख पढ़ाई गई, जैसे साल से मैं कहता था सारा पाकिस्तान की जो जड़ है वो यूपान है, तो लोग कहते तुम गद्दार हो। अब लोग सब लोगों के ख्याल चेंज हो गए। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, मेरे आज तक ये समझ नहीं आया कि इकबाल का ये बात बहुत अच्छा शायर था, खासतौर पर जो उसने इस्लाम के बारे में शायर की है, कोई इतना बड़ा एक स्कॉलर से बढ़ के किए मेरे हिसाब से। लेकिन मेरा आज तक ये समझ में आया कि पाकिस्तान से क्या क्यों जोड़ते हैं, उनका एक दूसरा नज़रिया था। लेकिन ये वहाँ तो एक शुरू से जो एक जिन्होंने कब्जा किया वो एक सिनेरियो बनाते हैं, वो बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगा। प्लस ये किया कि अनवर मकसूद आ रहे हैं 31 मई को, अगर किसी को जानना हो, हम लोग मिलके, मैं भी उनसे ज्वाइन किया मैंने, तकमील करके प्रोग्राम है, और ये होगा यूलिस में। मेरे अजीज़ उन्होंने बहुत अच्छा एक हॉल खोला सफ़ायर के नाम से, तो उधर है ये 31 को। अगर 30 तारीख 31 तारीख तक अगर आप अप्रैल की जो भी लास्ट डेट है उस वक्त तक टिकट ले लें तो $50 पर हेड है विद डिनर, और उसके बाद फिर वो 75 हो जाएगा। तो ऑनलाइन आप जा सकते हैं, मैं अगर किसी को लिंक चाहिए तो मैं दे दूँ। 31 मई को प्रोग्राम है, 31 मई को प्रोग्राम है, और 30 तक टिकट आप कम रखें, और मुझे उम्मीद है 700-800 लोग जमा हो जाएंगे। बस जी, बहुत शुक्रिया। ग्रीन मिल की होगी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सूफिया है, जो नए हजरात हैं और ख़वातीन हैं उनके लिए। और मेरा तो ये ख्याल था कि आज ईद का प्रोग्राम है, तो मैं ईद के हवाले से मजमून लिख के लाई हूँ, और मजमून है ईद और उर्दू शायरी। जी, तो जो मुसलमान गर्दन मीना में हाथ डालकर सोते हैं उनके लिए तो हर रोज़ ईद है, लेकिन बाकी उम्मत को 2 ही ईदें अता की गई हैं। इस्लाम में खुशियाँ मनाना भी इबादत है, इसलिए ये दोनों त्यौहार भी मजहबी रस्मात किए हुए हैं, लेकिन इनकी अपनी रौनक, रंगीनी और ख़ूबसूरती भी है। इसीलिए उर्दू शायरी में इन त्यौहारों से वाबस्ता रस्मों का खूब जिक्र मिलता है। ईद उल अज़हा तो कुर्बानी के जानवरों, उनके दिलचस्प किस्सों और कुर्बानी के गोश्त से बनने वाले लजीज खानों से इबारत होती है। यूसुफी साहब ने लिखा था कि मुसलमान किसी ऐसे जानवर से मोहब्बत कर ही नहीं सकते जिसे वो काट कर खा न सके। इसलिए बकरीद तो खालिस मुसलमानों के ज़ौक़ अक्ल व शर्ब के मुताबिक त्यौहार है। शायरी में अगर इसका जिक्र मिलता है तो मज़ाहिया शायरी के हवाले से ही मिलता है। कहीं कहीं तंज़ की लतीफ़ चाशनी भी मिलती है। मसलन ये अजीब माजरा है कि बरोज़ ईद क़ुरबा वही ज़िबाह भी करे वही ले सवाब उल्टा। लेकिन बकरों और कबाबों पर संजीदा और रोमानवी शायरी नहीं हो सकती। हाँ, ईद उल फितर के बहुत खूबसूरत, मोहने, नाजुक और दिलकश रंग और रिवाज हैं जो उर्दू शायरी के मिजाज से खूब मुताबिकत रखते हैं। इसलिए हमारी शायरी और फिल्मी गीतों में क्लासिकी शुरा से लेकर जदीद शुरा तक ईद का जिक्र खूब मिलता है। बस रोना इस बात का है कि ईद का जिक्र चंद मौज़ूआत तक ही महदूद है। तो आज हम उन्हीं मौज़ूआत का जिक्र करेंगे कि ईद को किन हवालों से उर्दू शायरी में याद किया जाता है। ईद के लुग़वी मानी लौटने के हैं, क्योंकि ईद हर साल लौट कर आती है, लेकिन शुरा को ये नाम इसलिए पसंद है क्योंकि ये दीद से हम काफिया है। ज़्यादातर उर्दू शायरी मर्दों ही ने की है, और कहा जाता है कि मर्द हजरात बसरी यानी विजुअल होते हैं, इसलिए दीद उनके लिए बेहद अहम है। जहाँ बच्चों के लिए शायद ईद की सबसे बड़ी खुशी ईदी हो, ख़वातीन के लिए नए मलबूसात और सिंगार हो, वहीं मर्द हजरात खुसूसन शोरा कराम के लिए ईद तभी ईद है जब इसमें किसी की दीद शामिल हो। इसीलिए ईद के हवाले से हर दूसरा शेर यही काफिया और यही ख्याल लिए हुए होता है। ईद आई तुम ना आए क्या मज़ा है ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। और अनवर शऊर जैसे बड़े शायर ने भी लिखा है कि जनाब के रुख रोशन की दीद हो जाती तो हम सियाह नसीबों की ईद हो जाती। पता नहीं इस्लामी रिवायात में मौनका ईद का शुरू से हिस्सा था या नहीं, लेकिन उल्मा यही कहते हैं कि ईदैन में मौनका करना या इसे ईद की खुसूसियत समझ के मुसाफा करना शरई नहीं है, बल्कि महज एक रस्म है।
शोरा को ईद की ये रस्म बहुत पसंद है और वो इसका इतलाक बिला तखसीस से सिर्फ करना चाहता है। इसलिए उर्दू शायरी में ऐसे बेशुमार शेर मौजूद हैं जिसमें ईद के मुकद्दस और मजहबी त्यौहार के मौके पर नामहरमी से गले मिलने की गैर शरई आरज़ू का शिद्दत से इज़हार किया है। जब तक ये रुकन पूरा नहीं होगा ईद ही नहीं होगी। ज़्यादातर शुरा की यह ख्वाहिश नासुदा ही रहती है और वो दाढ़ी मूँछों वाले अपने बहन भाइयों से 3-3 दफ़ा बगलगीर होकर सिवैयाँ खाकर अपनी हसरतों पे आंसू बहाकर सो रहे हैं। अक्सर शोरा की तो बेगमात भी उनकी इस ख्वाहिश की तकमील नहीं करती क्योंकि उन्हें भी बरस के बरस दिन 100 काम देखने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शोरा अपने अशार में इस ख्वाहिश के इजहार से बाज रखते हैं। उनके अशार इजहार मोहब्बत और हुस्न सलूक के इस अमली इजहार की आरजू से लबरेज हैं। ईद का दिन है, गले आज तुम मिले ज़ालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। जब से कमर बदायूनी ने ये शेर लिखा है और मेहदी हसन ने इसे गाकर ज़रबुल मिसल कर दिया है तो ये तो गोया ईद का नारा बन गया है। ईद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कोई इस मासूमाना ख्वाहिश का इजहार न करे और दलील में रस्म दुनिया, मौके और दस्तूर को पेश न करे। मसफ़ी जैसे बड़े शायर ने भी बड़े आमियाना अंदाज में यही बात की है। वादों पे ही हर रोज मेरी जान ना डालो, है ईद का दिन अब तो गले हमको लगा लो। साइंस चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, मुक़ौल इब्न इंशा आसमान में थगली लगा ले, लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला ईद का चांद ही रहेगा। इस मसले ने उम्मत मुस्लिमा को कई धड़ों में बांट दिया है। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी, होता ये नया चांद भी एक। इकबाल की रूह से इस बेकाफिया और बेवजन तहरीफ पर माजरत। शायर कहता है, ईद का चांद हूँ मैं वक्त से 2 दिन पहले, देख लेना कि पेशावर में नजर आऊंगा। और फिर मिस्टर जेदी का ये शेर तो सभी को याद होगा, ये कता, हमारी ईद है हम हर तरह मनाएंगे, हमारा शेख के फतवे पे एतबार नहीं, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने चांद देखा है, हमें खबर है कि वो गैर जिम्मेदार नहीं। हमारी ईद है हम हर तरह मनाएंगे, हमारा शेख के फतवे पे एतबार नहीं, हमारे डिप्टी कमिश्नर ने चांद देखा है, हमें खबर है कि वो गैर जिम्मेदार नहीं। ईद का चांद कितना ही बड़ा मसला क्यों ना हो, हमारे शोरा के लिए तो ये कुछ और ही मानी रखता है। हमारी सारी ज़रबुल इम्साल, मुहावरों, तशबीहात, तलमीहात और शार तक सभी तो 14वीं के चांद के ही गिर्द घूमते हैं। भला हो इस्लामी महीनों का कि नए चांद की भी कोई अहमियत है। ईद और रमज़ान तो शुरू ही नहीं हो सकते जब तक चांद न देखा जाए। चांद को हमारे शोरा अपनी महबूबाओं का सितारा समझते हैं। इसलिए जहाँ रुयत हिलाल वाले लाखों रुपए खर्च करके कौम के सरमाए पर चांद खोज रहे होते हैं, हमारे शायर तो अक्सर पड़ोस की छत पर मुफ्त में चांद देख लेते हैं। शहर की ईद हो ना हो, उनकी ईद हो जाती है। बकौल जलील निज़ामी, माह नौ देखने तुम छत पे ना जाना हरगिज़, शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। या इब्ने इंशा, तुझको तो हर शाम फलक पर घटता बढ़ता देखते हैं, उसको देख कर ईद करेंगे, अपना और इस्लाम है चांद। बड़े बड़े शोरा ने इस मौजू पर सुखन तराजी की है। अमजद इस्लाम अमजद ने कहा है, जिस तरफ तू है उधर होंगी सभी की नजरें, ईद के चांद का दीदार बहाना ही सही। और परवीन शाकिर ने भी लिखा था कि गए बस ईद का दिन क्या अच्छा था, चांद को देख के उसका चेहरा देखा था। और आखिर में ये हकीकत भी कि ईद के दिन जुदाई, उदासी और तन्हाई भी खुशलों का हिस्सा होती है। असलम कोसरी ने लिखा है, ईद का दिन है सो कमरे में पड़ा हूँ असलम, अपने दरवाजे को बाहर से मुकफ्फिल करके। जफर इकबाल ने कहा था, तुझको मेरी न मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी। ईद का दिन तो है मगर जाफर, मैं अकेले तो हंस नहीं सकता। वाह वाह। लेकिन ईद के हवाले से मेरी पसंदीदा नज़म दिलावर फिगार की है, जो ईद के चांद के तनाज़े को बहुत हल्के फुल्के और दिलचस्प अंदाज में पेश करती है। तो उसके मैं 2-3 शेर सुना के ख़त्म करती हूँ। रेडियो ने 10 बजे शब के खबर दी ईद की, आलिमों ने रात भर इस न्यूज़ की तरदीद की। रेडियो कहता था सुन लो कल हमारी ईद है, और आलिम कहते थे ये गैर शरई ईद है। 2 धड़ों में बढ़ गए मुल्क के सारे अवाम, एक तरफ सब मुक्तदी थे, एक तरफ सारे इमाम। बेटा कहता था कि कल शैतान रोजा रखेगा, बाप बोला तेरा अब्बा जान रोजा रखेगा। बेटा कहता था कि मैं सरकारी अफसर हूँ जनाब, रोजा रखूंगा तो मुझसे मांगा जाएगा जवाब। बाप ये कहता था कि फिर यूं बाम पर ईमां के चढ़, रोजा भी रख और रोजे में नमाज़े ईद पढ़। आज कितना फर्क फुल स्टॉप और कौमे में था, बाप का रोजा था बेटा ईद के जामे में था। इख्तिलाफ इस बात पर भी कौम में पाया गया, चांद खुद निकला था या जबरन निकलवाया अस्सलाम। सबसे पहले मैं देर से आने की माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे देर नाम सुबह आने में।
ये मेरा तीसरा मौका है इस महफिल को में आने का। मैं भी आपकी तरह नया ही हूँ यहाँ। मंसूर सिद्दीकी मेरा नाम है। दिल्ली से मेरा ताल्लुक़ है। तरबियत मेरी कलकत्ते में हुई। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दुबई और नाइजीरिया में गुजरा। गुज़श्ता 5 साल से मैं यहाँ मुक़ीम हूँ। यहाँ पर एक इदारा है मियामी में, एंटी फाइनेंशियल फ्रॉड। I have been on the board of this anti-financial fraud institution for the past 20 years. इसकी वजह से मुझे आसानी हो गई, मैं यहाँ आके मुक़ीम हुआ। अहलिया की तबीयत कुछ ख़राब थी, उनके इलाज की भी ज़रूरत थी, लेकिन उनके यहाँ इंतकाल हो गया। बच्चे मेरे यहीं हैं, तालीम उनकी यहीं हुई, फिर मैं भी यहीं बस गया। तलाश में था कोई ऐसा इदारा मिल जाए, ऐसी महफिल मिल जाए जहाँ हम ख्याल, हमने वाला, हम जुबान मुहैया। तो उनका है ये चीज़, ये महफिल उनका है। तो हज़रत ये मुनीर भाई की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे यहाँ मुतारिफ करवाया। मैं आपको सामने एक रुबाई पेश करना चाहता हूँ, जोश मलिया वाले के लिए। कहते हैं कि उलझुम हूँ जो सिमटूंगा तो कौसर होगा। गौर कीजिएगा, इंसान की बुलंदी के ऊपर कितनी ज़बरदस्त बयान है। कहते हैं कुलजुम हूँ जो सिमटूंगा तो कौसर होऊंगा, कतरा हूँ जो टपकूंगा तो गौर होऊंगा। कुलजुम हूँ जो सिमटूंगा तो कौसर होऊंगा, कतरा हूँ जो टपकूंगा तो गौहर होऊंगा। इस अर्श तख़य्युल की बुलंदी से कभी बिलफर्ज गिरा भी तो पैगंबर हूँ। इंसान की अज़मत, ये बुलंदी थी उनकी। इंसान को कितना बुलंद देखी उन्होंने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ने इंसान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी ज़िंदगी का एक और वाक़या मैं पेश करना चाहता हूँ, इजाज़त है। ये प्री पार्टीशन के दिन थे और जोड़ साहब लखनऊ में मुक़ीम थे। किस्मत पुलिसी का आलम था, माली मुश्किलात से गुजर रहे थे। उनको एक बार ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हालांकि वो ज़्यादा मजहबी इंसान नहीं थे, लेकिन अक़ीदा बहुत उनका मजबूत था। तो उसको बशारत हुई कि तुम हैदराबाद जाओ, जाके निज़ाम से मिलो और मेरा सलाम पेश करो। अक़ीदा मजबूत इतना था कि उन्होंने फ़ौरन इस पर यकीन किया। दूसरे दिन उन्होंने अपना सामान बांधा, हैदराबाद पहुंच गए। जाकर वहाँ निज़ाम के सामने हाजिर। तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या ताल्लुक़ फरमाई। कहने मेरा ताल्लुक़ से यह है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है आपके पास, आपको सलाम का। निज़ाम खड़े हो गए, शुमाली निज़ाम खड़े हो गए और फ़र्त मोहब्बत से उन्हें गले से लगाया। कहा कि आज कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आप क्या करते हैं, क्या आपका पेशा है, आपका इल्म व हुनर क्या है। तो फिर मैं शायद उर्दू और फारसी की खिदमत करता हूँ, जो अबूर है इस पर, इसी सिलसिले में अगर मैं कुछ कर सकता हूँ आपके मुल्क में खुशी होगी। उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप शायर हैं तो कुछ नमूना पेश कीजिए। जोश कहते हैं कि हुआ जो मुमकिन तो रोक दूंगा मैं रोज महशर हिसाब तेरा। ये सुनना था कि निज़ाम तो हत्ते से उखड़ गए। ये क्या बागियाना ख्यालात हैं आपके, आप हिसाब रोक देंगे, ये हमारा अकीदा है। हुजूर शेर मुकम्मल करने कहते हुआ जो मुमकिन तो रोक दूंगा मैं रोज हमेशा हिसाब तेरा पढ़ूंगा रहमत का वो कसीदा कि हंस पड़ेगा जलाल तेरा। निज़ाम इतने मुतासिर हुए कि उन्हें अपने शोबा इशाअत के सदर बनाया, मुलाज़मत की, और वहाँ उन्होंने काफ़ी दिन गुजारे हैदराबाद। फिर पार्टीशन के दौरान उन्होंने हिजरत कर लिया पाकिस्तान से।
तो इंडिया में भी ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं, बहुत दिलचस्प वाक़यात। मैं आपको एक पार्लियामेंट्री सिचुएशन बताता हूँ। ये उस ज़माने की बात है जब आई थिंक अर्ली 90s की बात है, जब ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस टुक प्लेस अक्रॉस द वर्ल्ड और इंडिया के पास इतना पैसे नहीं थे कि रोज़मर्रा के अखराजात पूरे किए जा सकें। वो ज़माना था कि हमारे ये मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था और उन्होंने वो सोना गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, and he borrowed 500 crores to run the country. And then he managed the affairs in such a way that when he handed over, it was 1 trillion economy, 1.5 trillion economy. He was a great economist. He's still, of course, alive. And उर्दू के बहुत शादाई। तो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के लीडर जो वो डिफेंड कर रहे थे अपनी फाइनेंस बिल को, तो एक ऑपोजिशन लीडर थी सुषमा स्वराज, शी वाज द फॉरेन मिनिस्टर। उन्होंने कहा ना इधर उधर की तू बात कर, ये पता है काफिला क्यों लुटा। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से ख्याल, मुझे रहबरों से गिला नहीं, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, रहबरों पे सवाल है। मनमोहन सिंह खड़े हुए कहने लगे, माना कि तेरे दिए के काबिल नहीं हूं मैं। क्या खूबसूरती देखिए जरा। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार दीवाना बात ये देखने की चीज है। उसी का ही। तो मैं छोटा सा वाक़या बात कर रहा था, बस इसीलिए मैं आता था। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई आप बात करें। अपने बच्चों की तालीम के लिए। बहुत शुक्रिया। तो आज मैं बल्कि मेरे ज़हन में 3 चीज़ें थी करने वाली, और मैं प्रायोरिटाइज कर रहा था कि कौन सी 2 करूँ जो 5 मिनट में पूरी हो जाए। मगर आप लोगों की किस्मत कि आपने मुझे सदर बना दिया और साहिब सदर को इजाज़त है कि 5 मिनट से ज़्यादा बोल सकते, इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं कहा। जैसे रिजवान भाई ने कहा, मैंने कहा ज़रूर शचोपन में जाके किस तरह रिजवान भाई को कहूँ कि मुझे 2-3 मिनट और दे दें। तो 3 चीज़ों पर बात करूँगा। एक तो मैं इकबाल के एक शेर पर बात करूँगा, दूसरा मैं बात करूँगा लीडरशिप के हवाले से, और तीसरा मैं बात करूँगा जो कि बड़ा सेंसिटिव लगेगा, इंटेलिजेंस के हवाले से। तो सबसे पहले जो इकबाल के हवाले से मैं ये सीखता हूँ कि जो भी है मुझे कई दफ़ा उसका कोई शेर समझ में आ जाता है, और अगर मैं, क्योंकि मुझे लिखने की आदत नहीं है, तो अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर मुझे भूल जाता है। मुझे यही याद रहता है कि मुझे ये कभी समझ में आया था। तो मैं इस शेर से आगाज़ करूँगा। खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारा एक मजहबी सा ताल्लुक़ है, हम समझते हैं ये कोई कलमा है शहादत के बारे में शेर है, ऐसे नहीं। खुदी का सिर्र नहा, खुदी वो इंटरनल टैलेंट है जो आपको अल्लाह ने वदीयत किया होगा। तो खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आप अपने इंटरनल टैलेंट को उस वक्त तक आगे नहीं ला सकते जब तक आप अल्लाह के अलावा किसी चीज़ से न डरें। खौफ जो है आपके इंटरनल टैलेंट को बाहर नहीं आने देता। तो ये इस शेर का। और खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, वही वाली बात है। खुदी है तेग, आपका जो इंटरनल टैलेंट है वो एक तलवार की तरह, और उसको निकालने के लिए आपको न डर होना पड़ता है, बेखौफ होना पड़ता है। मैंने क्यों ये बात की, ये ख़ास तौर पे आपके औलाद के हवाले से, नई जनरेशन्स के हवाले से, क्योंकि हम जिस तरह की कम्पेटिटिव वर्ल्ड में है, हमें अपने बच्चों का, आने वाली जनरेशन्स का इंटरनल टैलेंट निकालना है। और ये कोई मजहबी बात नहीं है,
खौफ के साथ आप इंसान के असली जौहर को छुपा देते हैं। तो बच्चों को डरा के रखना, धमका के रखना, मौलवियों ने पूरी कौम को डरा धमका के रखना, उससे आपका इंटरनल टैलेंट बाहर नहीं आता। और फिर अगला जो शेर है कि ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पैवंद, बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि ये दुनिया है, मालो दौलत, बच्चे, ये सब बुत हैं, परस्तिश के बुत हैं। मगर असली बात जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, डरना नहीं चाहिए। तो न डर, जो कि आप वेस्टर्न फिलोसफर्स में देखें कई दफ़ा ये बात कही जाती है कि चांस फेसेस द ब्रेव, और डरने वाले, इमरान खान भी यही कहता है, डरने वाले लोग अपना टैलेंट कभी आगे नहीं ला सकते। तो बेखौफ होना चाहिए, खुद ही कसर लेना। तो पहली ये बात थी, इकबाल डे के हवाले से भी मैंने कहा था, वो मेरा ख्याल है कि एक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है। तो जो शेख साहब बार बार कहते हैं वो भी मुझे आज सुबह समझ में आई इनकी बात, कि जो बात किसी की ज़िंदगी गुजर जाती है, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, तो ये गाने बजाने का मौका नहीं है, बल्कि सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है, जो कि समझ आती है बात कि 21 अप्रैल को करनी चाहिए। मगर दूसरा भी ठीक है। दूसरी बात जो कि है लीडरशिप के हवाले से, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तारीख़ी इमाम हुसैन और यजीद। अब यजीद के बारे में उसकी जो विजन, लीडर के पास विजन होनी चाहिए। तो यजीद के पास, आपको पता है कि जब करबला के बाद यजीद ने लोगों को बुलाया, मदीने के लोगों को, कि आओ मुझसे मुज़ाकरात करो। आपको पता है मदीने ने फसख कर दी थी यजीद की बैत करबला के बाद। तो उसने कहा, तो लोग वहाँ गए, तो अब वहाँ जाके उन्होंने देखा डांसिंग गर्ल्स हैं उसके माहौल में। उसने एक मंकी भी पाला हुआ था, बंदर भी था, उसका एक पालतू जानवर भी था। तो उन लोगों को देखें जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें देखी थी, और वो इस तरह के माहौल में उसकी विजन ही कोई यही थी कि गाने बजाने हों, बहुत हो तो मंकी हो। अगर आपने उसको अपने नुक्ते नज़र देखना है तो इमेजिन करें कि अल्लामा इकबाल यजीद से मिलने जाते, तो वहाँ एक बंदर बैठा होता, लड़कियाँ नाच रही होती, उन्होंने कहना था ये क्या ड्रामा है, ये क्या विजन, कोई विजन नहीं। उसके बरक्स आप देखें तो इमाम हुसैन, जिनको अभी भी इमाम कहते हैं, उनके पास विजन थी। वो देखते थे कि हम इस तरह लेकर आएंगे, इक्विटी पैदा करेंगे। और तो लीडरशिप जो है वो अबाउट विजन है। और वही बात है यजीद का, अगर आपको इल्म नहीं है तो करबला के 2 साल बाद घोड़े से गिर के मर गया था, और इमाम हुसैन का नाम अभी भी जिंदा है। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है हम अपनी कम्युनिटी के अंदर इसका ट्रेंड पैदा करें कि विजन होनी चाहिए लीडर्स के पास, जो कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि गज़ा के 50 साल पहले किसी के पास विजन नहीं, उन्होंने खुशी खुशी ज़मीनें बेच दी, मौके के फ़ायदे उठा लिए। और अनफॉर्चुनेटली वही हमारा हाल है इस वक्त डैलस कम्युनिटी को। तो अगर आप सबको कहें कि आमिर सुलेमान ने एक बंदर पाल लिया, तो आप ये नहीं कहेंगे ये क्या जाली बंदर पाल रहा है, आप कहेंगे आओ चलो सब मिल के देखते हैं। तो ये जो तमाशबीन हमारे अंदर घुस गई है, इसको ख़त्म करना चाहिए, वरना 50-60 साल बाद हो सकता है हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसका खमियाजा भुगतना पड़े, अगर हम अपने टैलेंट्स को ऊपर ना लाएं और ये तमाशबीनी को ख़त्म करें। तीसरी बात जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेंसिटिव हो, मगर बड़ी रियल है, मैं कल अपनी बेटी को भी समझा रहा था कि जब एक कौम पे के ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, तो जब एक कौम पे, एक मुआशरे पे बुरा वक्त आता है तो अल्फाज के माने ही बदल जाते हैं उनके लिए। उनको लगता है ये शहादत है और ये दहशत गर्द है और ये वो। उसी तरह एक लफ्ज़ जिसका मानी बदल गया है हमारे ज़हनों में, बदल गया, आपको हैरत होगी कि आपको सोचना पड़ेगा उसका मानी क्या है, वो है इंटेलिजेंस। हम लोगों को लगता है कि हाजिर जवाबी और मजाक उड़ाना और इस तरह की बात करना जिसमें आप हा करने लग जाएं, ये एक इंटेलिजेंस की ज़रिए है। और सच्ची बात तो ये है कि मेरा भी ये ख्याल था बहुत अरसे तक कि ये इंटेलिजेंस है कि आप थपती कस देना, ये कर देना। और मैं क्योंकि डिबेटर भी था तो मैं बड़ा प्राउड था, लोग कहते थे बड़ा इंटेलिजेंट है, हर चीज़ का मजाक उड़ा देते। तो मेरे जहन में इस लफ्ज़ के मानी, और अगर आप अपने जहन को टटोल के देखें
तो आपके पास इस लफ्ज़ के मानी रहा ही नहीं कि इंटेलिजेंस क्या होती है। आप सब लोग यही समझते हैं कि इंटेलिजेंस ये है, जिस तरह मैं मुशायरे में शेर पढ़ रहा था कि कुछ तो उस परिवश का ज़हन में ठिकाना है, और बिलीव मी कि मैं उसके बाद रुक गया। मैंने कहा अब यहाँ कोई बैठा हुआ बंदा कहेगा मावश, जो कि मेरी वाइफ का नाम है, तो उसने परिवश से मावश को कर दिया। समझते ये इंटेलिजेंट कमेंट है, इतने कोफ्त वाली बात है, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है इस तरह की बात करना, या इस तरह की बात, इस तरह का शेर के खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तो उसके आगे ये कमेंट देना कि रज़ाई के अंदर छुपे हुए थे ठंड लग जाएगी, तो अल्लाह पूछेगा तुम्हारी रज़ाई क्या है। ये इतनी कोफ्त वाली बात है, और हम एज अ मुआशरा इवन उर्दू घर के अंदर हम समझते हैं कि बहुत कोई अल्फाज के हेर फेर कर लेंगे, कोई वर्ड ट्विस्टिंग, ये कोई बहुत ही हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है। तो मैं आप सबके लिए कहूँगा कि ये इंटेलिजेंस नहीं है। अच्छा, मैं भी क्लास में हमारे वोटिंग होती थी, तो वो कहते थे क्लास का सबसे ज़्यादा बतूनी लड़का कौन है, तो हमेशा मेरा वो नाम आता था। मैं बहुत बुरा करता था हर चीज़ के ऊपर मजाक उड़ाना। फिर जब मैं अमेरिका आया तो यहाँ मॉर्निंग रिपोर्ट हो रही थी, और उसके बाद उन्होंने केस प्रेजेंट किया, और उन्होंने कहा अब इसको एनालाइज करे कोई। तो जब एक हमारे सीनियर डॉक्टर ने उसको एनालाइज किया, इस चीज़ का ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तब मेरी आंखें खुल गई कि ये होती है इंटेलिजेंस, कि आपने एक डेटा को लेके एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए एनालाइज किया। इसमें आपको क्विक विटेड होना ज़रूरी नहीं, हाजिर जवाब होना ज़रूरी नहीं, मगर हमारे मुआशरे के अंदर से इंटेलिजेंस का मानी ख़त्म हो गया। बिल्कुल कहते हैं ना, जिस तरह मैं जब मेरा ख्याल 12 साल का था तो मैंने पेरोडी लिखी माँ के ख्वाब के ऊपर, कहा मैंने पहचान कर मेरे बूटे जो छोड़ा था तो तुम थे बहुत छोटे। तो मेरी मम्मी ने कहा बहुत इंटेलिजेंट है मेरा बेटा। तो मेरा दिमाग वहीं फंस गया कि हम समझते हैं बूटे और छोटे कहने से आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है, जो अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करना इज़ इंटेलिजेंस। तो बैठ के इस महफिल में बैठ के सोचना कि हम कहाँ जा रहे हैं, सोचना कि मुमासलत क्या है, सोचना कि फ़लस्तीन वालों से गलती क्या हुई है, और जिस तरह मैंने कहा ना डेटा को एनालाइज करना, वो इंटेलिजेंस है। ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि बैठ के एक दूसरे का मजाक उड़ाना या फप्ती कसना। और वही वाली बात है कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, हमारा ज़मीर ही बदल गया। एक इतने कॉमन लफ्ज़ के हमको मानी नहीं आते। अगर आप मेरी उस गुफ्तगू से पहले 2 मिनट के लिए सोचें तो आपके जहन में यही है कि इंटेलिजेंस का मतलब है कि खुदा तेरी रज़ा क्या है, रज़ा और रज़ाई मिलते जुलते हैं, तो ये एक बहुत इंटेलिजेंट कमेंट आ गया। या हमारे टीवी प्रोग्राम आ, तो ये इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस अगर समझनी हो तो यूसुफी का कभी पढ़े कि हमारे यहाँ ईमानदार शख्स की तारीफ ही ये है कि जब तक वो ईमानदारी से सबका झूठ जीना आराम नहीं कर देता, अपनी ईमानदारी को मुस्तनद नहीं समझता। तो इस तरह की बातें जो आपको सोचने पे मजबूर करें। और उसी के साथ जो दूसरी चीज़ है वो है विजडम। विजडम ये है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को कहाँ इस्तेमाल करें और कहाँ ना इस्तेमाल करें। तो जिस तरह मेरी बेटी भी डिबेटर है, और मैंने उसको कल यही रात को समझा रहा था कि बाबा अपनी ज़िंदगी के 24 साल इसी मुगालते में रहा कि लोगों का मजाक उड़ाना या लफ्ज़ों के हेर फेर से घेरना या स्टेज पे चढ़ के किसी को हंसा देना, बहुत ही हाई लेवल की इंटेलिजेंस है। टिल आई रियलाइज्ड वन डे कि वो तो बिल्कुल ही एक मजाक था। तो वो इंटेलिजेंस है ऑफ कोर्स कि अगर आपके सामने एक कॉम्प्लिकेटेड केस पेश किया जाए और आप उसको एनालाइज कर लें, आपसे किसी को फ़ायदा हो जाए। तो जिस तरह मुझे ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ मगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बेटी को भी यही मिसाल दी। तो मैं डॉक्टर बशीर तो समझते हैं, मैं ICU CCU के बाहर था तो कार्डियोलॉजिस्ट भागा भागा आया। मैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो रिदम्स ऑफ द हार्ट में स्पेशलाइज करता हूँ। दिस इज़ समथिंग आई थिंक आई वॉज प्राउड ऑफ। आई थॉट दैट मेरे पास आया और कहते हैं कि ये पेशेंट मर रहा है, इसका CPR चल रहा है, कैन यू हेल्प मी। तो मैं अंदर गया और पेशेंट का CPR चल रहा है। कहते हैं इसको हमने मैकेनिकल हार्ट डाला हुआ है। तो मैकेनिकल हार्ट ऐसे नहीं होता कि आपका हार्ट निकाल के डाल दें, वो आपके ओरिजिनल हार्ट के साथ सीरीज सर्किट में दूसरा हार्ट लगा देता है। तो उसका ओरिजिनल हार्ट जो है वो फेल हो गया, उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चल रही है।
और मैकेनिकल हार्ट काम ही नहीं कर सकता, उसको ब्लड ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा व्हाट हैव यू डन? तो वो कहते हैं वी हैव बीन शॉकिंग हिम, गिविंग हिम मेडिसिन, रनिंग द प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा कि कितना मरीज तो CPR चल रहा है, तो मैंने कहा व्हाई डोंट वी शॉक हिम विद 720 जूल्स, 3360 मैक्सिमम डबल कर दे, शॉकिंग करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि वी नीड अनदर डिफिब्रिलेटर, मैंने कहा ब्रिंग इट इन। तो वो लाए, तो उन्होंने 2 डिफिब्रिलेटर हुकअप किए। तो कहते हैं हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, वी कैन नॉट शॉक हिम एट दिस। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैंने खुद अल्लाह का शुक्र है बटन प्रेस किए, दोनों डिफिब्रिलेटर, 720 जूल्स पे पेशेंट वापस आ गया। तो उसके बाद वो 2 मिनट के लिए नॉर्मल रिदम में रहा, फिर दोबारा चला गया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो अब इट वाज क्रक्स, सीइंग समवन इज ऑलमोस्ट डेड, आपके सामने है, नज़रों के सामने मरा हुआ। तो मैंने कहा कि अब ये कहते हैं ना फ्लैश मेरे जहन में आया कि इसका तो वो है मैकेनिकल हार्ट है नीचे। तो आप डॉक्टर बशीर को भी पता है कि आप बीटा ब्लॉकर्स तो बिल्कुल हार्ट को फ्लैबी कर देते हैं, चलते नहीं। तो मगर वेंट्रिकुलर स्टॉर्म के अंदर आप बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो मैंने कहा कैन वी पुल आउट बीटा ब्लॉकर्स? तो वही आगे से कि ये तो कभी कोई कोर्ट के अंदर कोई बीटा ब्लॉकर नहीं पुल आउट करता। तो मैंने सोचा कि ये तो मैकेनिकल हार्ट है। तो मैंने कहा लेट्स पुश बीटा ब्लॉकर्स। उन्होंने लो प्रेशर, वही वाली बात नर्स है, हमने नहीं करना, मैंने कहा लेट मी डू। मैंने पुश किया, मैंने कहा लेट्स शॉक अगेन विद 720 जूल्स। तो उन्होंने दोबारा शॉक किया, उसका हार्ट वापस आ गया और चल पड़ा। और जो मैकेनिकल हार्ट था उसको तो बीटा ब्लॉकर्स का कोई असर ही नहीं था। तो वो आई फेल्ट प्राउड कि दिस इज इंटेलिजेंस, कि मैंने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आउट ऑफ बॉक्स सोच के किसी की ज़िंदगी बचाई। तो आई थॉट दैट वाज इंटेलिजेंट थिंकिंग। तो दैट विल बी कॉल्ड इंटेलिजेंट। ये नहीं कि रज़ाई के ऊपर अल्लाह मियाँ मांग रहे और उसका मजाक उड़ा लें, इसके नंबरों से खेल लें। मैं तो बिल्कुल सच्ची बात है, जब मैं मुशायरे में शेर पढ़ता हूँ कुछ तो उस परिवेश का ज़हन में ठिकाना है तो फिर मैं पॉज कर देता हूँ। मुझे पता है इधर कोई ना कोई ज़हीन बंदा या इंटेलिजेंट बंदा ये ज़रूर कहेगा कि इसकी बीवी का नाम मावश है और वो परिवेश और मावश को कनेक्ट करेंगे। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। तो हमको एज अ कम्युनिटी नंबर 1 ये कि अपने इंटरनल टैलेंट को लाना चाहिए और उसके लिए खौफ को दूर करना चाहिए। वो FBI का भी खौफ हो सकता है, कई चीज़ों का खौफ हो सकता है। दूसरा ये कि हमको समझना चाहिए कि लीडरशिप इज़ अबाउट विजन। ये बंदर पाल लेना, अंदाज़ा करें आप कि आप खिलाफत इस्लामिया चला रहे हैं, 3 बड़े आज़मों पे आपकी हुकूमत है और आपने बंदर पाला हुआ है। I mean, I can imagine कि कितने फ्रस्ट्रेट होते होंगे ये देख के कि हमारे खलीफा वक्त में बंदर पाला हुआ है, डांस करा रहा है और हुकूमतें चल रही हैं। तो थोड़ा सा विजन होनी चाहिए, लीडरशिप का ये तकाज़ा है। और तीसरा मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ही सेंसिटिव नुक्ता है, हमारे उर्दू घर के अंदर भी है। हम समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की दलील है अगर आप अल्फाज को अल्फाज से मिला दें, हम रिदम अल्फाज कह दें। तो ये नहीं है। इंटेलिजेंस इज़ टू थिंक समथिंग जिसे मज़ा आए। जिस तरह केस रिपोर्ट डिस्कस हो रहा है, एक पेशेंट है जो बिल्कुल, या आपके फील्ड में भी कोई जा रहा है, जान से जा रहा है, तो आप कुछ सोचें। तो ये अल्लाह ने जो आपको इंटेलिजेंस दी है वो इंटेलिजेंस है। और हम लोगों को तो एज अ कम्युनिटी मानी भूल गया इंटेलिजेंस का। हमको ये समझ ही नहीं आता कि इंटेलिजेंस क्या है। अगर अभी इस गुफ्तगू से पहले मैं आप सबसे पूछता था, आपने जो सबसे अच्छी भक्ति का है वो इंटेलिजेंट है, तो दैट इज़ जस्ट भक्ति। और जुगतबाजी मुतरादिफ नहीं है इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस वो चीज़ है जो अल्लाह ने आपको वदियत की है और आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि इन मुल्कों में होता है। यहाँ कोई नहीं कहता कि जो बहुत अच्छा जुगतबाज है वही बहुत इंटेलिजेंट है, ये हमारे ही जहन में। और हम इम्प्रेस भी बहुत हो जाते हैं, हमारे साथ कोई बहुत ही अच्छी जुगत काटते तो हम कहते हैं वाह क्या बात हो गई। तो वही वाली बात है, मैंने पहले भी कहा था। और ये पुराना है, ये गुलामी का तोहफा है। वो अगर आप तिलिस्मी उशुरबा 1880 से भी उठा के देख लें तो उसमें भी यही इंटेलिजेंट है कि वो उम्र या जो है अल्फाज के हेर फेर से मज़ा पैदा कर रहा है, दास्तान जो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल अंग्रेज़ों ने कहा बहुत अच्छी बात है, यही करो, हम ज़्यादा इनाम देंगे अगर तुम लोग इस तरह करो। तो उन्होंने पूरी कौमों का ज़मीर बदल दी। तो मैंने कहा ये 3 बातें, क्योंकि आज मेरे पास मैं 5 मिनट में मुकम्मल नहीं कर सकूँगा,
अगर अल्लाह की तरफ से रिजवान भाई ने मुझे तीनों बात मौका दे अस्सलाम वालेकुम everybody. आया तो मैं यहाँ पे सोचा था एक गाना सुना के चलता बनूंगा, लेकिन धनक की निश्चित है और कुछ लोग पहली बात तो है, कुछ लोग नए आए हैं. Being one of the founders, I would like to welcome them. Please आते रहिए, आपके आने से हमारी शोभा बढ़ती है. दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक और हिंदुस्तानी को देख के मैं बहुत खुश हूँ. मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से घिरा हुआ रहता हूँ. वो भी हिंदुस्तानी ही है पहले Let's not go that far. Let's not go that. तीसरी बात ये है कि आमिर भाई ने आके बहुत बड़ा, डॉक्टर आमिर ने आके बहुत अच्छा बोला. कुछ हिस्सों से मैं टोटल उनके साथ इख्तिलाफ रखता हूँ. इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट ह्यूमर. जो ह्यूमर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, दैट वाज बैड ह्यूमर. ओवरऑल ह्यूमर इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस. अगर आप IQ का टेस्ट देखें, डायरेक्ट मेजर, जो कि डायरेक्ट मेजर ऑफ इंटेलिजेंस है, उसमें ह्यूमर इज पार्ट ऑफ दैट. So is history, physics, chemistry, politics, religion. हमारे यहाँ मैंने क्या देखा है कि we don't know anything but Islam. And I say we because मेरा दोस्त, मेरा भाई, he converted me into Islam. तो ये जो रोजे आए हैं, मैंने 30 की जगह पे 35 पता ही नहीं चला. पिछले साल के भी रख लिए. तो मैं वी इसलिए कह रहा हूँ, that's lack of intelligence. If you don't know other religions, how can you say your religion is the best or the most proficient if you don't know about what else exists? You can't say that. That's lack of intelligence. Lack of intelligence is thinking that you are very good in the field that you have been trained and you have a license to use that. That's not intelligence. Intelligence is knowing what are the other fields and what they are doing. That's intelligence. The other part, knowing about your own field, is education. Don't confuse education with intelligence. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं आई वांटेड टू ब्रिंग. अब आते हैं हम कि आज का गाना जो मैं गाने आया था यहाँ पे, वो हाँ, आज है इकबाल का दिन. तो इकबाल की एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर और बहुत अच्छी गज़ल है, कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आए, जो कल फेसबुक पे डाली थी उसको. हाँ, वो मैंने अपनी उसका जो मतला डाला था उसका. Welcome to use Bluetooth microphone. Bluetooth mode. Bluetooth connected. ये इसके बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ सुनाने से पहले आपको. एक तो ये कि ये है तो गज़ल, लेकिन इसको म्यूजिक में बांधा गया है एज ए कव्वाली, जो कि बहुत ही बड़ी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है. मदन मोहन ने इसको म्यूजिक बंद किया है. तो म्यूजिक कोई बात चलेगी, सब समझ में आ गई. मेरी वो आदत नहीं ना जाती. पुरानी आदत ये है कि मुझे उर्दू, मैंने जब से उर्दू घर ज्वाइन किया है उर्दू बोलने लग गया हूँ. इससे पहले मुझे उर्दू बोलना नहीं आता था. आपने सीखी तो उर्दू बाकायदा कैसे? हाँ, अब मैं सीख रहा हूँ ना. तो अभी ओ इस anyway, तो
ایک تو بات یہ ہے کہ یہ غزل ہے اور اس کو انہوں نے میوزک میں ڈھالا ہے ایز اے قوالی. دوسری بات اس میں اہم ہے، ڈالنے والے مدن موہن تھے، انہوں نے ایک غلطی کی ہے اس میں. اس کا جو مقطع ہے وہ ہے میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تو جب وہ میوزک میں باندھنے لگے تو وہ کبھی جو ہے وہ فٹ نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے ان کو دونوں کو سوئچ کر دیا. میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. میں جو سرب سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی. اور اس نے اس کے لیے معذرت میں لیٹر بھی لکھا. تو یہ دو باتیں بہت خاص ہیں اس کے بارے میں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ گایا تو ہے لتا منگیشکر نے، تو آپ میری آواز میسکولن آواز میں پتہ نہیں فٹ آئے گا کہ نہیں، لیکن آج اس کا دن ہے اقبال کا، جو میں اس کا بہت بڑا فین ہوں، تو میں وہ سنائے بنا نہیں رہ سکتا. Welcome to use Bluetooth microphone. تو مجھے اجازت دیجیے. Bluetooth connected.
इश्क में रही गर्दियाँ